Bismillahirrahmanirrahim. Class 12th Economics. Today our topic is monopoly. Monopoly market. Monopoly type of market. What is monopoly? Concept क्या है इसका? Monopoly is a form of market. Is a form of market in which there is a single seller of a there is a single seller or producer of a commodity. There are no close substitutes of the monopoly product. And there are legal, technical, or natural barriers to the entry of new firms in the monopoly market. A monopolist has complete control over price and can also practice price discrimination. Now, what is the monopoly market? Monopoly market is type of market, is a form of market in which there is a single seller or producer of a commodity. Monopoly is a form of market in which there is a single seller or producer of a commodity. There are no close substitutes of the monopoly product, and there is a legal, technical, natural barriers of the entry of new firms in the monopoly market. A monopolist has complete control over price and can also practice price discrimination. These things should be noted. Remember it. Monopoly is a form of market in which there is a single seller or producer of a commodity. There are no close substitutes of the monopoly product, and there is legal, technical, or natural barriers to the entry of new firms in the monopoly market. A monopolist has complete control over price and can also practice price discrimination. Now remember it, monopoly market क्या है? It is quite different to the perfect competitive market. Monopoly market में क्या है? There is single seller or producer of a commodity.
जब हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं वहाँ पर हम देखते हैं कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। यहाँ पर है सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ ए कमोडिटी। देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, यानी कि जो कमोडिटी है, जो हमारा ये जो मोनोपोली प्रोडक्ट में जो मार्केट है, मार्केट में जो भी जो प्रोड्यूसर है या जो प्रोड्यूस करता है वो उसकी प्रोडक्शन का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। there are no close substitutes of the monopoly product and there is, और वहाँ पर क्या है, एक तो सिंगल सेलर है, क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, और एंट्री की जो न्यू फर्म की एंट्री जो है वहाँ पर लीगल, टेक्निकल एंड नेचुरल बैरियर्स है, यानी कि कोई नई फर्म इंटर नहीं कर सकती है। देयर इज़ नो एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, देयर आर लीगल, टेक्निकल एंड नेचुरल बैरियर्स। यहाँ पर लीगल है, टेक्निकल है, नेचुरल बैरियर्स है ऑफ द न्यू एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन द मोनोपोली मार्केट। A monopolist has complete control over price. Monopolist को क्या है, प्राइस पर कंट्रोल है। Monopolist has complete control over price and also can practice price discrimination. एक तो यहाँ पर कंट्रोल पर प्राइस पर कंट्रोल है, मोनोपोलिस्ट को प्राइस पर कंट्रोल है। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मोनोपोलिस्ट, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मोनोपोलिस्ट एंड ही कैन प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है कि किसी से भी कोई भी वो कीमत ले सकता है, यानी कि यहाँ पर सेम प्राइस नहीं होता है, यहाँ पर उसकी चॉइस होती है। ये जो प्रैक्टिस करता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ये है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में ए मोनोपोलिस्ट में चार्ज डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स, it is called price discrimination. Price discrimination refers to the practice by a seller of charging different prices from different buyers of the same product. Price discrimination ये है। Price discrimination के साथ साथ यहाँ पर ये क्या है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट भी नहीं है। फ्री एंट्री एग्जिट क्या है? यहाँ पर पेटेंट, यहाँ पर मैं लिखूँगा पेटेंट राइट्स है, पेटेंट राइट्स एंड पेटेंट लाइफ। ये भी पेटेंट राइट्स एंड पेटेंट लाइफ जो है ये भी एक बैरियर है, ये भी एक बैरियर है टुवर्ड्स द मोनोपोली एंट्री ऑफ द टुवर्ड्स एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन द मोनोपोली मार्केट। पेटेंट राइट्स एंड पेटेंट लाइफ क्या है? पेटेंट राइट क्या है पहले हम देखेंगे। इज द ऑफिशियल रिकॉग्निशन ऑफ द originators, innovators of a new product or technology. Nobody can copy their product or technology without obtaining a license. Patent right क्या है? Patent right है is the official recognition. Official recognition है of the originators, innovators of a new product or technology. Nobody can copy their product or technology without obtaining a license. यानी कि यहाँ पर ऑफिशियल रिकॉग्निशन है ऑफ द ऑरिजिनेटर्स या इनोवेटर्स जो हैं, यानी इनका जो प्रोडक्ट है पेटेंट राइट में nobody can copy their product with or technology without obtaining a license. विदाउट ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस, ये पेटेंट राइट होता है। पेटेंट राइट में नोबॉडी कैन कॉपी द प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी विदाउट ऑब्टेनिंग ए लाइसेंस। फिर है पेटेंट राइट, पेटेंट लाइफ। पेटेंट लाइफ क्या है? पेटेंट लाइफ है रेफर्स द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच ए
patent right is granted refers to number of years for which patent right is granted, यानी कितने सालों के लिए पेटेंट राइट इनको ग्रांट किया गया है, इस चीज़ को हम कहते हैं दैट इज़ पेटेंट लाइफ। इन ये जो है ये बैरियर्स हैं। इस यहाँ पर इस मोनोपोली मार्केट में कोई भी फर्म एंट्री नहीं कर सकती है क्योंकि वहाँ पर पेटेंट राइट्स होते हैं, पेटेंट लाइफ होती है, इसलिए कोई एंट्री नहीं कर सकती, कोई फर्म एंट्री नहीं कर सकती है। इसके लिए इनको वहाँ पर ज़रूरी से गवर्नमेंट से लाइसेंस हासिल करनी है। विदाउट ऑब्टेनिंग द लाइसेंस no firm is able to enter in monopoly market. This is the concept of monopoly market. Now what are the features of monopoly? मोनोपोली मार्केट के फीचर्स क्या हैं? फीचर्स क्या है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट? नंबर 1 मेन फीचर जो है, नंबर 1 है वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। फर्स्ट फीचर जो है मोनोपोली का फर्स्ट फीचर है वन सेलर। अभी हम डिस्कस कर रहे थे मोनोपोली सिचुएशन में सेलर 1 होता है या प्रोड्यूसर 1 होता है और बायर्स जो होते हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ये है वन फीचर। नंबर सेकंड फीचर इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स, ये दूसरा फीचर है मोनोपोली मार्केट का। ये अंडर मोनोपोली देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इनटू द इंडस्ट्री, इनटू द मोनोपोली इंडस्ट्री। Under monopoly, there are some restrictions on the entry of new firms into the monopoly industry. Generally, there are patent rights or exclusive control over a technique और रॉ मटेरियल। अभी हम पेटेंट राइट्स की बात कर रहे थे। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस एंट्री ऑफ न्यू फर्म। नंबर सेकंड फीचर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। जो न्यू फर्म्स हैं उन न्यू फर्म्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो इंटर नहीं कर सकते हैं इसमें। अभी मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर पेटेंट राइट्स होते हैं। पेटेंट राइट्स की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी फर्म एंट्री नहीं कर सकती है मोनोपोली मार्केट में विदाउट ऑब्टेनिंग द परमिशन। नंबर 3 नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अभी हम बता रहे थे मोनोपोली फर्म प्रोड्यूस अ कमोडिटी दैट हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। एग्जाम्पल, देयर इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट और रेलवेज एज ए बल्क कैरियर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। मोनोपोली कंपटीशन की जब हम बात करते हैं, मोनोपोली मार्केट की हम बात करते हैं, मोनोपोली मार्केट की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर तीसरा फीचर जो है दैट इज़ देयर इज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। यहाँ पर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसे कि हम देखते हैं, ऐसे हम यही कहेंगे ए मोनोपोली फर्म प्रोड्यूस ए कमोडिटी दैट हैज़ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप हिंदुस्तान में आप देख लीजिए या किसी भी जगह आप देख लीजिए, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट और रेलवेज। जब रेलवे की हम बात करते हैं, रेलवे एक बल्क कैरियर है, एक जो हम माल कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इतना माल किसी चीज़ में हम नहीं कैरियर नहीं कर सकते हैं जितना हम थ्रू रेलवे कर सकते हैं। वो बल्क कैरियर के लिए वो एक सही चीज़ है अगर हमें ज़्यादा गुड्स
एक जगह से दूसरी जगह ले जाने हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा माल हम जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे उसके लिए हमें रेलवे की ज़रूरत पड़ती है, रेलवे का सहारा लेना पड़ता है। Number fourth is full control over price. फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस क्या है? यहाँ पर ये सिंगल सेलर है। बीइंग ए सिंगल सेलर of the product, monopolist has full control over price. A monopolist thus is a price maker. He is a price maker. A monopolist is a price maker. He is not a price taker. He is a price maker. He can fix whatever price he wishes to fix for his product. Full control over price. फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। अभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर इसको ये मोनोपोलिस्ट जो है इसको कंट्रोल होता है प्राइस पर। बीइंग ए सिंगल सेलर of the product, a monopolist has full control over its price. A monopolist thus is a price maker. He can fix whatever price he wishes to fix for his product. Number 5 is price discrimination. अभी मैं आपको बता रहा था व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? ए मोनोपोलिस्ट में चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स। A monopolist may charge, a monopolist can charge different price from different buyers. It is called price discrimination. It is called price discrimination. Price discrimination refers to the practice by a seller of charging different prices from different buyers for the same good. यानी कि प्रोडक्ट एक ही है, ये प्रोडक्ट जो है, अब ये मोनोपोलिस्ट जो है इसी एक प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट जो है, सेम प्रोडक्ट का प्राइस जो है ये इसमें डिस्क्रिमिनेशन करता है। क्या डिस्क्रिमिनेशन करता है? किसी को ज़्यादा प्राइस में देता है, किसी को कम देता है, किसी को, यानी कि इसका जो होता है कि मोटिव इसका ये होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसको प्रॉफिट हासिल करना होता है। किसी बायर से वो प्रॉफिट ज़्यादा हासिल करता है और किसी से वो कम हासिल करता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं दैट इज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये 5 चीज़ें जो है, दीज आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोली। दीज आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोली। नंबर 1 इज one seller and large number of buyers. Number 2, restriction on the entry of new firms. Number 3, no close substitute. Number 4, full control over price. Number 5, price discrimination. These are the 5 features of monopoly. Thank you for today.